Good morning, students. Hope you all are doing well at your home as well as you performed well in your 10th board exams. Now you all are free to think about what you want to choose. But you have a very tough decision ahead because you have to thought, आपको सोचना है, आपको समझना है. Now what will be your next step? As we are following the Indian system in which +1 and +2 class is your destination deciding class, because in this you have a lot of options to do. You have what to do, you have to choose which subject, what you want to become, what you want to have in your life, because every person have their ambition. And being a student life, we have an ambition to become a doctor, engineer, IAS officer, IPS officer, data analyst and many more. We all have one target in our mind that we want to, जिसे हम अचीव करना चाहते हैं. आज हम जीनियर स्कूल के टीचर, मैं यामिनी, आप सब लोगों को आपके करियर काउंसलिंग थोड़ी सी करना चाहूँगी, जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट बताना चाहूँगी. आई एम वर्किंग हियर एज एन इकोनॉमिक्स लेक्चरर, सो वी विल फोकस ऑन दैट. Careers. As I told you, +1 class, +2 class is your career molding class. You have to decide कि आपको क्या करना है. क्यों? क्योंकि जब आप +1 +2 में जो सब्जेक्ट लेंगे, ऑब्वियस है आप उसी में अपनी ग्रेजुएशंस, मास्टर्स, सब डिग्रीज को अचीव करेंगे ताकि आप अपने उस टारगेट तक पहुंच पाएँ. उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या चूज़ करना है? You can see on the screen you are in the same position, but you have to opt because you have a science stream, art stream, commerce stream, humanities. Every person have their own dreams, every person have their own targets. These all streams helps you to achieve these targets. For example, if you want to become a doctor, engineer, pilot, then you must go about science section. In this you will study how these all things you can make. And if you want to go for become a CA, chartered financial analyst, or whatever you want to become by the way of the accountant type, then you have to opt the commerce. And if you want to go for the IAS, IPS and all this, then it is a humanities. Last option is arts. आप बच्चे मेरे साइंस में जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट्स बनेंगे. कॉमर्स में जाएंगे, आप CA बनेंगे, CFA बनेंगे, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनेंगे. आर्ट्स में यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विद यू. आर्ट्स में जो आपके बेसिकली सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपका चॉइस रहता है, पोल साइंस, जियोग्राफी, लाइक दिस सब्जेक्ट्स. Economics is only that subject which is in the 2 of streams. You can get in the arts, you can get in the commerce as well, you can get in the humanities. इसमें जो रहेगा ये आप कहीं भी अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. And it's a very like immense pleasure for me that Genius School is providing all these 3 streams for the betterment of your future. In this picture you can make an idea that we are sailing in any of the boat where you have 3 streams. Now you have to decide where you should go in science, commerce and humanities. Humanities is similar as arts. Fine. So Genius School आपको ये तीनों के तीनों स्ट्रीम्स प्रोवाइड कराता है. यहाँ पर आपको इसके लिए बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल कराई जाएगी. बहुत सभी टीचर्स जो हैं वो सब वेल एक्सपीरियंस स्टाफ हैं जो यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा है. तो बेसिकली बच्चे, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. दैट आई विल टीच बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई एम द इकोनॉमिक्स लेक्चरर.
This is my subject. I will take a little bit of your time regarding the economics. What is economics? Do you have any idea? No. Everybody have studied a little bit part of the economics in your previous classes. Even अगर मैं बात करूं, आप अपने डेली लाइफ के अंदर भी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. Now you will ask, madam, how? The same question arises in your mind, how? So let me tell you, economics is that branch of social science which deal with the scarce resources and their allocation of resources. Being a teacher, I am earning something. फिर भी मुझे लगता है कि मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं ज़्यादा खर्च कर पाती. बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोगों को भी अपने घर से पॉकेट मनी मिलती होगी. आपको ये लगता है अगर पॉकेट मनी ज़्यादा मिल जाती तो हमारे लिए अच्छा होता. नाउ एवरीबडी हैव अ वेरी स्केयर रिसोर्सेज. सबके पास रिसोर्सेज, साधन क्या हैं? बहुत ज़्यादा थोड़े हैं. साधन क्या है? बहुत ज़्यादा थोड़े हैं. जबकि उनके यूजेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा है. तो अब हमें इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है कि हम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर पाएँ, इस चीज़ की स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है. गेटिंग माई पॉइंट? Economics is a study of a man in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Thus, it is on the one side the study of the wealth and on the other and more important side a study of the man. इकोनॉमिक्स मेरे बच्चे एक स्टडी है, मैन की स्टडी करते हैं जो वो ऑर्डिनरी बिजनेस करता है अपनी लाइफ में, जिसमें उसके इंक्वायर किया जाता है कि उसकी इनकम कितनी है एज वेल एज वो उसको यूज़ कैसे करता है. दूसरी तरफ इट इज़ अ स्टडी ऑफ द वेल्थ. बच्चे इनकम और वेल्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या होता है? इनकम दैट इज़ अ रेकरिंग इन नेचर, जो हम लोग अभी कमा रहे हैं, जो हमें हमारे डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमें मिल रही है. वेयर एज वेल्थ इज़ योर एसेट. वेल्थ इज़ योर, इन हिंदी, शुद्ध हिंदी, इट्स पूंजी, जो हमारे पास है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक घर है जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से मिला है, दैट इज़ माई वेल्थ, दैट इज़ माई वेल्थ. और जो घर है बच्चे, वो मुझे हमेशा इनकम नहीं दे सकता. इनकम के लिए मैं क्या कर रही हूँ? कुछ और सैलरी, कुछ और काम कर रही हूँ. तो वो जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरी इनकम आ रही है. तो यहाँ पे मेरी वेल्थ की स्टडी भी की जाती है और मेरी इनकम की स्टडी भी की जाती है. जब मेरी इनकम और वेल्थ की स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. अब अगर आप लोग देखें, आपकी डेली लाइफ के अंदर मैं इतने एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसमें आपको समझ आएगा, अच्छा यही है इकोनॉमिक्स, हमने ऐसे पढ़ी है इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में दूध है. दूध तो हर किसी के घर में होता है या नहीं होता? होता है. अब मान लीजिए हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा है. उस छोटे बच्चे के लिए जो मदर है वो क्या करेगी? दूध ज़्यादा पीने पे कंज्यूम करेगी. इफ़ दे हैव लाइक स्केयर रिसोर्सेज. अगर उनके घर 2 किलो दूध आता है तो वो क्या कहेंगी कि बड़े बच्चों, पहले हम छोटे बच्चे के लिए दूध रखते हैं, उसके पीने के लिए काम लेंगे. आफ्टर दैट मैं आपको शेक बना के दूंगी, कॉफ़ी बना के दूंगी, बचे हुए दूध की दही बना के दूंगी. बट इफ़ दिस रिसोर्सेज आर वेरी एम्पल इन नंबर, बहुत सारे नंबर में अगर ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो वो रिसोर्सेज हमारे क्या रहते हैं? स्केयर नहीं रहते हैं, वो कम नहीं रहते हैं. तो जब ये रिसोर्सेज मेरे स्केयर हैं, उसको अब मैं अलोकेट कैसे करूं कि एक मदर सोचती हैं कि वो दूध को दूध एक क्या है? रिसोर्स है. उनको वो कैसे अलोकेट करे कि घर पे जितने भी पर्सन हैं उनकी दूध से डिमांड जो होनी है वो पूरी हो जाए. जैसे कि मदर, आपके घर में दादाजी भी हैं, उनको 2 टाइम चाय चाहिए. आपके घर में छोटा बेबी भी है, उसको 3 टाइम दूध पीने के लिए चाहिए. आपके घर में फादर हैं, आपके फादर 2 या 3 टाइम चाय पीते हैं, उनको चाय भी चाहिए. आप हैं, आपको 2 टाइम, डॉक्टर कहते हैं ना, मिल्क वंस इन अ डे मिल्क इज़ नेसेसरी. दूध दिन में एक बार पीना ज़रूरी है. तो 1 टाइम आपकी मम्मा आपको भी बना के देती हैं. अब आपकी मम्मा को किस किस की डिमांड को पूरा करना है? आपकी,
आपके दादाजी की, आपके पापा की, एज वेल एज आपके घर में जो छोटा भाई बहन या कोई छोटा बच्चा है उसकी डिमांड को भी पूरा करना है। तो आपकी मदर के पास रिसोर्स क्या है यहाँ पे? मिल्क। रिसोर्स क्या है? मिल्क, विच इज़ अ स्केयर इन नेचर। स्केयर का मीन्स क्या होता है? जो लिमिट है, जिसके साधन बहुत लिमिटेड है हमारे, वो जो स्केयर रिसोर्सेज हैं आपकी मम्मा के पास, दूध जो का जो स्केयर रिसोर्स है उनको अलोकेट करना है ताकि वो आप सबकी विशेष को पूरा कर पाए। तो ये आपकी मम्मा भी क्या कर रही हैं? इकोनॉमिक्स कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इकोनॉमिक्स कर रही हैं। इकोनॉमिक्स से डील कर रही हैं। किससे डील कर रही हैं? इकोनॉमिक्स से डील कर रही हैं। लाइक एज योर फादर, टेक एन अनदर एग्जाम्पल। आपके पापा की इनकम है 20,000 रुपीज़ मंथली। उस 20,000 में आपके पापा को घर के लिए राशन भी ला के देना है, आपके स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, आपके दादाजी बीमार रहते हैं, आपके दादाजी की जो दवाइयाँ हैं वो भी ला के देनी है, एज वेल एज आपके घर में आपकी दादी माँ हैं, उनको चश्मा भी बनवा के देना है। तो अब आपके डैड की यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स क्या है? 20,000 उनकी इनकम। लिमिटेड रिसोर्स क्या है? उनकी इनकम। जबकि उनका जो यूज़ है, जो उनका अलोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जब आपके डैड जब इससे कर रहे हैं, वो बाइफर्केट कर रहे हैं कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा काम कैसे नहीं होगा, तो जब ये स्टडी भी कर रहे हैं तो आपके फादर भी किससे डील कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं। So in short, economics, what is economics? Economics is a study of a man in the ordinary business of life, जो हम डेली रूटीन की आइटम्स जो डेली रूटीन में करते हैं ताकि जो हमारी सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमम हो, इस चीज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है, अगर मैडम इकोनॉमिक्स इतनी सी है तो इसका पूरा सिलेबस क्या होगा? ऑब्वियसली गुड क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो। देखिए मेरे बच्चे, जब आपको स्टडी किया, ये हमने कौन से लेवल पे स्टडी किया? सिर्फ मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया, पापा का एग्जाम्पल दिया या मम्मा का एग्जाम्पल दिया, बट हमारी इकॉनमी, जो हमारा पूरा भारत देश है, उसके पास भी रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत लिमिटेड है। उन्होंने भी यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब का क्या करना है? पूरा करना है। उन सब की इच्छाओं को, उन सब की डिमांड्स को पूरा करना है। उन सब की डिमांड को पूरा करने के लिए उनको रिसोर्सेज का अलोकेशन ऐसे ही करना पड़ता है। ये है मेरे बच्चों इकोनॉमिक्स। अब मैडम ने आपको इकोनॉमिक्स समझा दी, शायद आपको इसका मीनिंग समझ आ गया, पर जब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों लें, क्यों पढ़ें हम इकोनॉमिक्स, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, हम कहाँ इसको लाइफ में लगाएंगे? देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड में किसी भी फील्ड में प्रेफर करते हैं तो आप इसमें बैचलर डिग्री ज़रूर करेंगे। बैचलर डिग्री मतलब जिसे आप क्या बोलते हैं? BA, BSc, ऐसे जो वो डिग्रीज़ होती हैं, बैचलर डिग्री ज़रूर करेंगे। अगर आपने बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कर ली, अगर आपने बैचलर डिग्री अपनी इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं, जिसे हम BA इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, BA इकोनॉमिक्स से BA वो करने के बाद, ऑनर्स में करने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, वो अपॉर्चुनिटी आती है कि आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन भी। आपके पास आफ्टर जॉब, आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेटिक भी बन सकते हैं, एडवाइज़र मैनेजर भी बन सकते हैं, एनालिस्ट भी बन सकते हैं, कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूंगी, इसका बाद में देती हूँ, पहले हम इसकी ये देखते हैं। यहाँ आपने BA करने के बाद आपने क्या किया? जॉब कर ली ग्रेजुएशन के बाद। बट अगर आप लोग अफोर्ड करते हैं, आप अपनी मास्टर्स डिग्री भी कंटिन्यू करते हैं, तब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो आप यहाँ जॉब करेंगे सेम ये वाली, और इसके अलावा आप डॉक्टरेट की डिग्री भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डॉक्टरेट। डॉक्टरेट किसे बोलती हैं? PhDs। जो इकोनॉमिक्स में PhDs कर जाता है वो बहुत बड़े इकोनॉमिक सर्वेयर बन जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, शायद इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट इनका नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि ही इज़ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। यही हमारे माइंड में आता है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि ही इज़ द इकोनॉमिस्ट। ही इज़ द इकोनॉमिस्ट। उनको पता है, उनको पता था कि महंगाई को कैसे काबू करना है, कैसे नहीं काबू करना है। ही इज़ द इकोनॉमिस्ट। उन्होंने ये जॉब की।
चलिए मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जॉब्स कैसे इसकी जॉब्स क्या निकलेंगी। जैसे आपने डेली पढ़ा होगा या अखबार में, न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में आप लोग पढ़ते होंगे कि आज महंगाई बढ़ रही है, आज महंगाई कम हो रही है, या हमारी महंगाई जो है वो कम ज़्यादा होती है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा मॉर्टेलिटी रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है। ये सब काम कौन करते हैं? ये इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। अब ये सब काम करने के लिए भी इनको जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है, एनालिस्ट, कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग बहुत अच्छे से हायर करते हैं, और आप अगर इकोनॉमिक्स होने का प्रोफेशन चुनते हैं तो ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कि आपको एनालिस्ट बनना है या आपको रिसर्चर बनना है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे बच्चे। हम लोग अगर बनना चाहें ना तो हम लोग सिर्फ एक जर्नलिस्ट बनने के तौर पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज इन्फ्लेशन रेट ये हो गया है, आज ये डिमांड है, आज वो डिमांड है। तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की मेरे बच्चे बहुत सारी ब्रांचेज होती है, माइक्रो है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बट लेट मी इंट्रोड्यूस योर +1 सिलेबस। इन +1 सिलेबस यू विल study these two books. The one is the introductory microeconomics and second one is the statistics for the economy. आपको नाम से पता चल रहा है introductory microeconomics, in which it means we will study the all factors on micro level. साइंस सब बच्चों ने पढ़ी, इंग्लिश सब बच्चों ने पढ़ी। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे। माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे। यहाँ हम पढ़ेंगे जब छोटे छोटे फैक्टर्स में हम लोग अपनी इकॉनमी को कैसे बेटर कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी हम लोग इसका पार्ट पढ़ेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे सोच के देखेंगे, डिमांड, सप्लाई, ये सब कॉन्सेप्ट करके देखेंगे। एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाली बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो डाटा निकालते हैं, जो डाटा को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। आपको याद होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th में, रिमेंबर? याद आया कुछ, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड को कैलकुलेट किया था। दिस इज़ अ बुक फॉर द सेम, दैट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। आपका स्टैटिस्टिशियन के सारे जो फॉर्मूले हैं उसको बताया जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे बच्चे, आपको बुखार हुआ, आपको बुखार हो रहा है, आप डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने बोला इसका तो ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला इसका ब्लड चेक करना पड़ेगा। नाउ व्हाट द डॉक्टर विल डू? सारा खून निकालेगा या एक सैंपल लेगा? एग्जैक्टली एक सैंपल लेगा, एक छोटा सा उसका 1 ml या 2 ml हमारा जो है वो ब्लड लेगा। तो वो जो सैंपल है वो किस तरीके से चुनना है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे से आए। ये सब चीज़ों की स्टडी कैसे करेंगे हम लोग? ये सब चीज़ों की स्टडी हम इसके अंदर करेंगे कि क्या हमारे सैंपल बनेंगे, क्या हमारे सेंसस में जाएगा, कौन सा सैंपल हम लोग चूज़ करें कि जो हमारा डाटा है वो 100% आए। सबसे पहले बात, हम इस डाटा को डिवाइड कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ की जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या बनेगा? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में जाएंगे। सो टुडे वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के आपको बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप सब बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट, काइंडली कॉन्टैक्ट एट द आवर respected director sir number. Your all the queries will be clear on that. Hope आज जो मैंने टॉपिक कराया ये आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, या आपको क्लियर हुआ होगा कि येस, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेने के बाद आपके पास आपका ख़त्म हो जाता है, या जॉब सिर्फ साइंस कॉमर्स वालों के पास या हमारे अदर्स के पास है। अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट का भी अपना एक लाइफ में बेनिफिट है, अपनी एक पहचान है जिसे हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ all for the today. Thank you so very much my dear students. I will see you in the next class. Thank you so very much.